Greetings of the day, student. I hope you all are fit and fine and you all are doing hard in your study. You are working hard at home and with that you are keeping yourself fit and fine and healthy. So as you can see the blackboard, we are going to start up a new chapter, that is chapter 4, and the name of the chapter is Interdependence Among Living Beings. So in this chapter we are basically read about how plant and animals are interdependent, how they are interconnected to each other for food, for shelter. Okay, so let's start the topic. Okay, let's read the chapter. Human beings, animal and plant are all living things. So as we know, we are living things because we breathe, we work, we move, we feel, that's why we are living things. Okay, so plant, animal and human beings are living things because ये लोग जो है सांस लेते हैं, लाइफ सर्वाइव करते हैं, क्यों? इसलिए वो क्या है, वो लिविंग थिंग्स है. They all are part of environment, so we all are part of our environment, our society. हम लोग जो है सारे जो लोग हैं, सारे जो प्लांट है, सारे जो एनिमल है, we all are part of environment. Okay, all the organisms in the environment are dependent on each other directly or indirectly. So basically we are connected to each other, we are dependent to each other for food, for shelter. Okay, सो हम लोग क्या है, हम लोग एक दूसरे पे निर्भर है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या हम ह्यूमन बींग्स हो, हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर है. ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ओके, सीधी तरीके से या फिर इनडायरेक्टली. ओके, we cannot survive without plant and animals. So without plant and animals, if there is no plant, there is no animal, we cannot survive. अगर प्लांट ही नहीं होंगे, we don't get oxygen, how we are going to survive? और अगर animals ही नहीं होंगे तो how the life cycle will be there? There will be no life cycle नहीं होगा. Okay, so everything is important in nature, if it is human being, if it is plant or animal. सबका बैलेंस होना environment में बहुत जरूरी होता है. Similarly, they are dependent on us. So animals and plant, they are also dependent on us. This dependency among all the living beings in the environment help in maintaining the balance in nature. So हर चीज अगर हर चीजें अगर सही मात्रा में हो तो क्या होता है, नेचर का बैलेंस बना रहता है. अगर प्लांट ही नहीं होंगे, एनिमल होंगे या फिर ह्यूमन बींग्स होंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा. जैसे आप लोग खाना बनाते हो, जैसे मम्मा हमारे किचन में कुक करती है, अगर सब्जी में नमक ठीक से नहीं डालती तो आपको सब्जी अच्छा लगता है? अगर सब्जी में कभी बहुत ज्यादा नमक हो जाता है तो कैसा होता है, एंड जब बहुत कम नमक होता है तो कैसा होता है. सो हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में. ओके, सो एज इट इज क्या है, एनिमल्स देन प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स का क्या है, नेचर में बैलेंस है, इसलिए सब सरवाइव कर रहे हैं. This living components of the eco can further be classified into categories on the basis of their interdependence. So according to our habits, according to our lifestyle, okay, we are divided into 3 category. हम लोग को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है. ओके, दैट इज प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है. कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है, चीजों को कंज्यूम करता है, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूम करता है, लेता है. एंड डिकम्पोजर, जो चीज बच जाता है उसको डिकम्पोज करता है. ओके, सो प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल वी प्लांट आर प्रोड्यूसर, प्लांट जो है फूड प्रोड्यूस करता है. कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर, हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या है, कंज्यूम करते हैं. प्लांट जो भी देता है हम लोग खाते हैं. एंड डिकम्पोजर, सो डिकम्पोजर्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज all the waste in the nature into fertilizer. Okay, soil में convert करता है. So decomposer are the thing which decompose all the waste in nature into soil. Okay, उस सब चीजों को decompose करता है. First one is producer. So who are producers? Plants are the producer. Okay, plant consists of root, stem, leaf, flower, fruits, etc. So plant is consist of fruit. प्लांट में फ्रूट होते हैं, देन फ्लावर होता है, देन लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन इन कलर. बेसिकली बहुत
ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं ड्यू टू क्लोरोफिल इन द लीव्स. ओके, द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल. सो द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, उसे क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल बोला जाता है. बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल लीव्स लुक ग्रीन. जब तक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, तब तक लीव्स क्या दिखते हैं? ग्रीन दिखते हैं. ओके, impart the green color to the plant. Plant prepare their food with the help of water, sunlight, carbon dioxide, chlorophyll. So these are the things which plant require to prepare their food. What they require? They require sunlight, सूर्य की रोशनी चाहिए उन्हें, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, देन कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द प्लांट, जो खाना प्रिपेयर करते हैं पूरे प्लांट के लिए. प्लांट आर देयरफॉर कॉल्ड प्रोड्यूसर. इसलिए प्लांट को क्या बोला जाता है? प्लांट को प्रोड्यूसर बोला जाता है. ओके, एज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. ओके, दे डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट. उनको मार्केट से कुछ मिलता नहीं है. ओके, दे प्रोड्यूस फूड फॉर देयर सेल्फ. वो खाना खुद से अपना बनाते हैं. ओके, with the help of all this thing. Then the thing they require is water, sunlight, carbon dioxide, chlorophyll. Okay, next is consumer. So we are the consumer in environment, क्योंकि हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं, वहां से लेते हैं, वहां से लेते हैं, वहां से लेते हैं, फिर हम लोग अपना खाना खाते हैं. So we are the consumer in the society, क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं दूसरे से. All the organism which depend for the food on the plant come under the category. So the living things, the animals who are dependent on plants, कि plants से हमें खाना मिलेगा, they are called consumer. क्योंकि हम लोग क्या करें? कंज्यूम करें. हम लोग प्लांट से ले रहे हैं. So we are consumer. हम लोग खुद से अपना खाना नहीं बनाते. We consume from somewhere to feed ourselves. Okay. For example, bird, animal and human beings. So these are the कंज्यूमर, बिकॉज ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. बर्ड हो गई, एनिमल हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए. वी डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर. हम लोग क्या है? प्रोड्यूसर पे डिपेंड है कि हाँ प्लांट खाना देगा तो हम लोग खाएंगे, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, सीरियल्स मिलेंगे, देन हम लोग अपने आप को फीड करेंगे. ओके, सो वी आर द कंज्यूमर्स इन द इन्वायरमेंट. ओके, नेक्स्ट इज डिकम्पोजर. सो हु आर डिकम्पोजर्स? Solely destroyed by the nature chemical process. Okay, so decomposer are the waste in environment. Okay, so decomposer का भी होना इतना ही जरूरी है जितना कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का होना जरूरी है. ओके, अगर हम लोग कंज्यूम करते जाएंगे, जो वेस्ट होगा फेंकते जाएंगे और वो डिकम्पोज नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा फिर? सो डिकम्पोजर का भी होना बहुत जरूरी है. ओके, डिकम्पोजर्स आर वेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोजर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ओके, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. वो लोग डिकम्पोजर इतने छोटे होते, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, वो इतने छोटे होते हैं हम लोग के आंखों से नहीं देख सकते. हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते. ओके, वी कांट सी देम बाय आवर नेकेड आइज. हम लोग अपने आंखों से उसे नहीं देख सकते. ओके, दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म secreted in fuel by their body which decomposed dead bodies of plant, animal and other organism waste. So what is the work of the decomposers? So work of the decomposer is to decompose everything into soil. चाहे वो bodies हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडीज हो. जब ह्यूमन बॉडीज डेड कर देते तो दे बिकम डिकम्पोज हो जाता है. ओके, देन प्लांट का लीव्स हो गया, देन स्टेम हो गई, ये सब क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं. ओके, देन एनिमल बॉडी ऑल्सो डिकम्पोज इन सॉइल. ओके, अगर एनिमल की बॉडी को देखा अगर कुछ मर जाता है और उसे हम अगर मिट्टी में दफना देते देखिए वो कुछ टाइम बाद वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाते हैं. ओके, दे कन्वर्ट इनटू सॉइल. ओके, कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कन्वर्टेड इनटू सॉइल. ओके, उसे धीरे 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 नष्ट कर देते हैं. This help the organism waste to root the disappear slowly. Bacteria and fungi are the decomposers. So the decomposers are bacteria and fungi. So fungi and bacteria क्या करते हैं? Decompose करते हैं all the dead plants and the dead insects
ओके, एवरीथिंग। जब हम लोग भी देखते हो, अगर हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसका जो वेस्ट बचा रहता है उसको हम क्या करते हैं, हम लोग जो है उसे इकट्ठा रखते हैं और उसको क्या करते हैं, मिट्टी के साथ मिला देते हैं। वो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो फर्टाइल बन जा वो फर्टिलाइजर बन जाता है। ओके, खाद में कन्वर्ट हो जाता है। As we know that living beings depend on other living beings for their food. So as we know, we are the living things and we depend on other living things for food to survive in nature. हम लोग क्या है, हम लोग खाने के लिए दूसरे पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? बेसिकली प्लांट पे ही निर्भर है, प्लांट एंड एनिमल्स पे निर्भर है। Although plant are producer, but they also depend on man for watering. सो हम लोग तो है, हम लोग तो कंज्यूमर है, बट हम लोग भी प्रोड्यूसर भी है, वो भी कंज्यूमर पे एक तरह से डिपेंडेंट है। ओके, फॉर द डिपेंडेंसी ऑफ वाटरिंग, पानी के लिए। ओके, वी कैन सी देयर इंटरडिपेंडेंसी बाय अंडर द डिफरेंट हेडिंग। हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि वो लोग भी जो है हमसे कनेक्टेड है, हमसे हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है। Okay, dependence of human beings. So how human beings are dependent on producer? Okay, consumer जो है producer के ऊपर कैसे dependent है? Human beings are dependent on plant and animal for food. Basically for food we are dependent. अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? And from where we get food? We get food from plant and animals. So plant and animals are the two sources of food in nature. Plant and animals are useful to us in the following ways. So plant and animals are very useful for us in various ways. Okay, how we will read about. Plant are our main source of food. So plant are the main source of food. Plant ही है जो main जरिया है हमारे खाने का। We get cereals, fruits, vegetables, oil, spices, breads, etc. So हम लोग को जो है, जो हम लोग हर दिन खाते हैं, जो बेसिक फूड है हमारा, जो बेसिक डाइट है, वो किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। जैसे हमारा सीरियल हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, ओके, सब्जियां, फल फूल और ऑयल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए। ओके, ये सब किससे मिलते हैं? ये सब प्लांट से मिलते हैं। वी गेट ऑल थिंग्स फ्रॉम द प्लांट। वी गेट मेनी अदर यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट लाइक वुड, पेपर, रबर, fibers like cotton and jute, etc. So not the food, we also get different things from the plant, useful things from the plant. We get furniture, we get wood from the plant to make furniture, and we get rubber, then paper, okay, fibers like cotton and jute भी हमें plant से ही मिलता है। okay, and paper भी, जिसपे हम लोग पढ़ते हैं, books are made up of plant, पेपर से बनाए जाते हैं। okay, rubber also we get from plant. So there are so many things we get from plant. okay, animals provide us milk. So from animal we get milk, then meat, egg, etc. okay, we get fibers like wood from sheep and silk from silkworm. So we get silk from silkworm. silk हमें silkworm से मिलता है। then sheep से हमें क्या मिलता है? wool मिलता है। okay, जिससे स्वेटर बनाए जाते हैं। we get egg and meat from the animal. So from where we get milk and meat, milk और meat and eggs जो है हमें animal से मिलते हैं। animals help in transportation in village in the different terrestrials. okay, जहाँ पे भी बंजर जमीन है, जहाँ पे भी ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, वहाँ पे क्या होता है? एनिमल्स का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन डेजर्ट वी यूज कैमल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, देयर वी यूज एनिमल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, जैसे डेजर्ट हो गया, जैसे माउंटेनियस प्लेस हो गया, एंड द स्नो एरिया हो गया, वहां पे तो हम कार या व्हीकल्स नहीं लेके जा सकते। सो देयर वी यूज एनिमल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, camel are used in desert and mules are in hilly areas. So these are the animals which are used for the transportation. ट्रांसपोर्ट के लिए ह्यूमन बींग्स उसे यूज करते हैं। ओके, Plant purify air around by releasing oxygen.
So what plant do? The main and the important thing is plant purify air. Plant जो है हवा को साफ करता है, प्योरीफाई करता है, ओके, पॉल्यूटेड एयर को प्योरीफाई करता है, एंड बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो कंज्यूम करता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें देता है. सो वी टेक ऑक्सीजन एंड वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो जो पॉल्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड जितने भी पॉल्यूटेड चीज होता है उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, देन they take out, they release oxygen. Okay, next is dependency of animals. Okay, how animals are dependent, okay, on the plant, okay, on the producer. Forest and jungle provided shelter and habits to many animals. So forest is the main and important place where all the animals live. Okay, आपने देखा होगा एनिमल्स बेसिकली जंगल में ही रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. ओके, प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर द हार्बिवोरस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स. सो प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ हार्बिवोरस, जो ओनली प्लांट खाते हैं, जो मीट नहीं खाते हैं, जो एनिमल ओनली प्लांट खाते हैं और सिर्फ वो क्या है, वो मीट ईटर नहीं होते, वो सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं. दे आर हार्बिवोरस. ओके, दे ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, वो भी प्लांट पे ही निर्भर है. फॉर कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट इनडायरेक्टली, बट कार्निवोरस भी है वो भी इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, क्यों डिपेंडेंट है? अगर डियर्स नहीं होंगे, डियर्स को क्या चाहिए, डियर्स को चाहिए उनको लीव्स चाहिए, उनको प्लांट चाहिए उनके खाने के लिए. अगर डियर्स ही नहीं होंगे तो फिर लायंस नहीं होंगे, अगर लायंस नहीं होंगे तो फिर ये जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो नहीं रहेगा. ओके, सो इवन कार्निवोरस और ओमनिवोरस भी प्लांट पे एक तरह से निर्भर है, क्योंकि उनको भी क्या है, प्लांट ईटर एनिमल मिलता है जिसे वो खाते हैं. ओके, so carnivorous are those animals which eat meat, flesh of other animals. Okay, and omnivorous are those animals which eat dead things. Okay, plant breathe out oxygen which is inhaled by animals. So plant जो है जब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो भी क्या है, एनिमल्स इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं. So ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स वी आर सेम. हम लोग भी क्या है, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, देन ऑक्सीजन वो लोग छोड़ते हैं. ओके, मैन प्रोवाइड एनिमल्स फूड एंड शेल्टर. मैन क्या करता है, इंसान क्या करता है, इंसान जानवरों के लिए खाना और शेल्टर प्रोवाइड करता है. कैसे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द जूज. जू में आपने देखा होगा, जू में बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है. देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्टिकुलर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एनिमल सेंचुरी, इज अ फैसिलिटी वेयर एनिमल आर ब्रॉट टू लीव एंड प्रोटेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम. सो सेंचुरीज वो प्लेस है जहां पे एनिमल्स को रेस्क्यू किया जाता है, एनिमल्स को लाया जाता है, वहां रखा जाता है उनके लाइफ टाइम के लिए. ओके, देन वाइल्ड लाइफ हो गया, पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, दे आर मेड बाय मैन, जहां पे एनिमल्स जो है प्रोटेक्टेड रहे और जो हमारा लाइफ sacycle है इंटरडिपेंडेंसी का वो विकार ना हो, वो वेस्ट ना हो. ओके, वो इक्वल रहे, बैलेंस रहे नेचर में. ओके, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द नेचुरल हैबिट्स, और वहां पे क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. ओके, सेफ रहते हैं. डिपेंडेंस of plant. So how plant are dependent, how plant are dependent on us. Plant जो हम पे कैसे dependent है. Animals, plant and human beings all are interdependent on each other. So animals हो गए, plants हो गए, then we are all are interdependent. हम लोग एक दूसरे पे क्या है, dependent है, निर्भर है. For survival, जिंदा रहने के लिए. Okay, none of them can be isolated. हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हम लोग एक दूसरे से आइसोलेट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते. अगर अलग होंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इन नेचर. अगर हम लोग प्लांट से अलग हो जाए, एनिमल से अलग हो जाए तो हमें खाना ही नहीं मिलेगा. अगर एनिमल से अलग हो जाए तो उनको भी खाना नहीं मिलेगा, उनका भी लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर देयर फूड. ओके, प्लांट जो है बाय फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाते हैं. सो आई
I have already told you what are the things required plant for prepare their food. Okay, so that process is called photosynthesis. Okay, प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं और जो जो चीज से बनाते हैं सारे चीज को उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, फॉर दिस दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है. एक तरह से प्लांट भी हम पे क्या है, डिपेंडेंट है. अगर हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिलेगा तो वो लोग अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से, देन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट के लिए. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के खाना बनाने के लिए. ओके, with water and sunlight. So sunlight and water is also important for the plant to prepare food. Okay, human beings and animal breathe out carbon dioxide. Okay, animals और human beings, हम लोग और जानवर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है. ओके, dead animals and decomposers provide water and fertilizer to the plant. dead animals और डेड प्लांट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, सॉइल को फर्टिलिटी देते हैं. ओके, फर्टाइल बनाते हैं. Thus we can say that all the living things are dependent upon each other. So हम लोग बोल सकते हैं कि सब जो है, सारे लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और जो ये हमारा साइकिल है वो एक दूसरे के वजह से ही स्टेबल है. ओके, बैलेंस बना हुआ है. ओके, अगर प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे. सो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर आर मेन पार्ट ऑफ द लाइफ. ओके, अगर ये तीनों नहीं होंगे तो हमारा जो लाइफ साइकिल है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा. ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक. सो वी हैव लर्न अबाउट producer, consumer and decomposer, and in today's chapter we have completed chapter, that is chapter 4, interdependency among living beings. How living beings are interdependent on each other. So first is producer. First one is producer. So green plant are the producer who make food in the leaves. So green plant are the producer who provide food to the others. Okay, green plant एक ऐसा प्रोड्यूसर है, वो खुद का ही प्रोड्यूसर है, वो खुद का ही खाना खुद बनाता है. ओके, दे डोंट वेट फॉर द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स कि हमें खाना दे. ओके, नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर. अ कंज्यूमर इज अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. इट गेट एनर्जी बाय ईटिंग फूड. ओके, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड ह्यूमंस. सो कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर. कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड. वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. दे डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर. ओके, खाने के लिए कंज्यूमर पे कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है. ओके, फॉर एग्जांपल एनिमल एंड ह्यूमन. सो एनिमल एंड ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर. ओके, फॉर फूड. लास्ट वन इज डिकम्पोजर. सो a decomposer is a living thing that get energy by breaking down dead plant and animals. For example, fungi and bacteria. So fungi and bacteria are the example of decomposers who decompose everything into soil. Okay, ये सब जो है fungi and bacteria क्या कहते हैं, decompose करते all the dead plants, all the dead bodies, okay, into soil. Okay. So we have completed this chapter. I hope you have no doubt in this chapter, and if you have any doubt, ask me during the class hours. Okay, so we have completed chapter 4. I hope you understand this chapter. Once you will complete this video, mention your name in the comment box. Okay student, bye bye, take care and have a nice day.